We celebrated Good Friday and we met right here. आप जानते हैं कि शुक्रवार को हमने गुड फ्राइडे एक साथ मिलकर मनाया था And at that time, I preached on a passage from, on a verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. You remember that? आप वो जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 5 के 21 पे हम लोगों ने इस बात दौरान बात की थी And that's what we looked at. Can we put that up? 2 Corinthians 5:21. For our sake, he made him to be sin, so that in him we might become the righteousness of God. उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी नजर में पवित्र कहलाए जाएं That's what we looked at. और यही हमने देखा था And we saw how Christ became our sin. और हमने देखा था किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया उसने Now this morning I would like to go a step further than that. आज इस सुबह मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा I want to talk to you about how Jesus is now our life. आज मैं बात करना चाहूंगा कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमारा जीवन बन गए You got that? He became our sin, और आपने देखा कि वो हमारे पाप बना but now he is our life. और अब आप देखेंगे कि वो हमारे जीवन बन गया Isn't that good? क्या जबरदस्त है बात You can smile. आप हंस सकते हैं Look at the person next to you and smile. आप दूसरे व्यक्ति को देखकर हंस सकते हैं That's good. We're celebrating Easter. आज हम उत्साह मना रहे हैं यहाँ पर पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं Some couple of years ago, I remember walking. I went for a funeral service, मैंने एक बार कुछ सालों पहले मैं जानता हूँ किसके मरने के दिन पे मैं गया था वहाँ पर and I was walking through the cemetery, and you notice all these graves. और कब्रिस्तान में जब मैं चल रहा था बहुत सारी कब्रों को जो हम देखते हैं And I saw one of the gravestones, and it had a very simple inscription on it. और वहाँ पर एक कब्र के ऊपर एक पत्थर पर एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ था और मैंने उसको देखा And it just said, I am the resurrection and the life. और वहाँ पर लिखा था कि मैं जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ Those words hit me like they've never hit me before. और ये जबरदस्त जो शब्द थे मुझे एकदम से लगे और ऐसा कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ था I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ And that person in that grave, that was his hope. और जो उस कब्र में जो व्यक्ति था वो उसकी आशा रही होगी You've got to go to a funeral or a cemetery to understand life and death. अगर आप कभी मौका मिले तो कब्रिस्तान पे जाइए तब आपको पता लगेगा कि जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है Now those words are the words that Jesus said. और वो शब्द थे जो यीशु मसीह ने कहे थे And he said it to Martha, ये मार्था को बोला था and Martha's brother Lazarus was in the grave. और लाजरस के बारे में बोला था जब वो कब्र में था And Jesus was on his way to raise Lazarus from the dead, and he said to Martha, I am the resurrection and the life. मार्था के साथ लाजरस की कब्र में यीशु मसीह जा रहे थे तब उन्होंने मार्था को बोला था कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ And then on the next verse after that, he says, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. और अगले शब्द जो उन्होंने बोले थे ये बोला था अगर जो भी मर भी जाए तो भी वो मेरे में जिंदा रहेगा And everyone who lives and believes in me shall never die. जो कोई जीता है अगर वो मेरे पे विश्वास करता है वो कदापि नहीं मरेगा Do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं Amen. 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 Now, a short while later, Jesus was arrested और कुछ समय बाद यीशु मसीह को पकड़ा गया and he was tried. और वो वहां पर सताए गए And he was falsely accused and he was put on the cross. और झूठे बातों के ऊपर उसको फंसाया गया और उसको क्रूस पर लटकाया गया And that's what we saw on Good Friday where he died. और यही हमने गुड फ्राइडे के दिन पे देखा था जब वो क्रूस के ऊपर उन्होंने भी जान And then दिया था Joseph of Arimathea, a rich man, took his body down. He got permission, took his body down, and he put him in his tomb. और यूसुफ ने उसकी शरीर को उनसे लिया था और उसको कब्र से लेकर चला गया And the Pharisees, they ensured that the tomb was sealed. और फरीसियों ने इस बात को तय किया था कि वो उसको खास आदमी ही लेके जाए And they put guards in front of the entrance of the tomb with that big stone there. और उसकी गुफा के सामने जहाँ पर यीशु मसीह रखे गए थे वहाँ पर गार्ड को भी रखा गया था Because they didn't want the body to be stolen. और वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह के शरीर को चुराया जाए But the gospel tells us that early that Sunday morning, और पवित्र शास्त्र बताता है कि सुबह रविवार that these two ladies went to the tomb early morning while it was still dark. और सुबह जब अंधेरा ही था ये दो औरतें कब्र के पास गई Like this morning, we went for a sunrise service, it was still dark. और जब कि आज हमने देखा कि हम सुबह एक सनराइज सर्विस में गए थे और जब सूरज भी नहीं निकला था And when they walked over there, they found that the stone had been rolled away. जब वहाँ पर गए उन्होंने देखा कि जो पत्थर जो गुफा पे रखा हुआ था वो खिसक गया था And they were terrified. और वो डर गए And they looked in, I think, and they saw that the body was not there. और उन्होंने देखा अरे शरीर तो वहाँ पर है ही नहीं
And while they were wondering what had happened, जब वो अचानक इस बात पे अचंभा ही कर रहे थे, 2 angels appeared to them. दो सरदूत उनके सामने आए It says 2 men appeared to them. और यहाँ पे लिखा है दो आदमी उनके सामने And आए। they were wearing dazzling white clothes, I think. और चमकती हुई सफेद ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी And so the women recognized that these were angels. और उन औरतों ने इसको पहचाना, हाँ ये स्वर्गदूत हैं। And these 2 angels said to them, और इन दो स्वर्गदूतों ने इन औरतों से कहा, "Why do you seek the living among the dead?" क्यों आप एक जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हो? Amazing, isn't it? क्या जबरदस्त है, सही बात है। Why do you seek the living among the dead? क्यों आप एक जिंदे को मुर्दों में ढूंढते हो? Now, when you go to a cemetery, जब आप कभी चांस मिले तो कब्रिस्तान में जाते हैं and maybe you lost a father or a mother or a loved one, and you're visiting the cemetery, तो हो सकता है आपके परिवार से किसी का देहांत हुआ हो और उसको लेकर आप कब्रिस्तान में विजिट करने के लिए गए। what are you going to see? आप क्या देखने जाएंगे वहां पर? Just a grave and a stone, that's all. वहां पे सिर्फ आप कब्र को देखने जाएंगे या एक छोटा पत्थर वहां पर जो होगा उसको देखने जाएंगे। You're looking for the dead amongst the dead. आप देख रहे हैं मरों को देख रहे हैं। And so, in the same way, Mary and Martha went to the cemetery and they were looking for the dead among the dead. और इसी प्रकार से मार्था और मैरी भी गए थे कब्र में ये देखने के लिए, मरों में देखने के लिए गए थे। Because that's normal. और ये ऐसा स्वाभाविक है। But Jesus is different, isn't he? पर यीशु बिल्कुल अलग है। That's why the angels say, "Why are you looking for the living among the dead? Don't you get it?" इसी प्रकार से स्वर्गदूत ने बोला, क्यों तुम एक जिंदे को मुर्दा में देख रहे हो? क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? It's almost like the angels were surprised. और इसी प्रकार से क्योंकि स्वर्गदूत भी बहुत ही अचंभे थे इन दोनों को वहां देखकर। Mary, you're not supposed to be here और मरियम, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था because Jesus is not here. क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है। That's strange, जबरदस्त बात है, and it's different. लेकिन ये बिल्कुल अलग है। But that's who Jesus is. लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही है। Over a period of 40 days, Jesus appeared to his disciples several times. 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को अलग-अलग जगहों पर दिखाई दिए। And there was one time that he appeared to about 500 plus disciples at one time. एक समय था जब 500 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह एक साथ दिखाई दिए। And you know, when he appeared, he wasn't just a spirit or a ghost. और वो जब उनके सामने आते थे कि भूत की तरह नहीं है, कि आत्मा की तरह नहीं, He had a body. लेकिन उसका उनका शरीर था उस समय। He ate food. और वो खाना भी खाया करते थे उनके बीच में। He talked to them. वो बातें किया करते थे उनके बीच में। And even Thomas came and he put his hand in his side and in the nail marks. और थॉमस यहाँ पे आया और उसने उनके शरीर में उंगली, उनके जख्म में उंगली घुसा के भी देखी। Because Jesus rose from the dead. क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। No one has ever risen like him. और कोई भी आज तक उसकी तरह जी नहीं उठा। Lazarus rose, लाजरस खड़ा हुआ, but he died. लेकिन वो फिर मर गया। And others did as well. और दूसरों ने भी ऐसा ही किया। But the Bible tells us in Revelation 1:17 that Jesus rose never to die again. प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है कि यीशु मसीह जिंदे हुए फिर कभी ना मरे। Now you know there's two things about Jesus' life that people don't like very much. लेकिन दो चीज ऐसी मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग अधिकतर पसंद नहीं करते हैं। They don't like that he was born of a virgin, और एक चीज पसंद नहीं करते कि वो कुंवारी मरियम से जन्म हुआ, or that he was resurrected from the dead. और दूसरी कि वो मुर्दों में से जी उठा। And so people spend a lot of time trying to disprove those facts. लोग बहुत सी ऐसी अपने समय को बिताते हैं इस बात को नकारने के लिए कि ये सही नहीं है। They keep attacking those things. और वो उस पर हमला करते रहते हैं इन दोनों चीजों पे कि ये जो चीज है वो सही नहीं है। But I feel very good about that. मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात को जानकर। Because if they're attacking those things, it means those things are significant. और वो उन चीजों पे बात करते हैं, दो चीजों पे जो दो चीज हमारे लिए है, मसीह Because के लिए बहुत खास है। it means that if Jesus rose again, then he is different. और इसका मतलब ये है अगर यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा हो गए तो बिल्कुल अलग है। And if you acknowledge that he rose again, then you have to acknowledge that he is the Son of God. अगर आप इस बात को अंगीकार करते हैं कि वो मुर्दों में से जिनाया गया है, तो आप इस बात को भी अंगीकार करेंगे वो परमेश्वर का पुत्र है। He's just not an ordinary human being. वो एक साधारण आदमी नहीं है। He's the Son of the living God. वो जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। That's his life. वही उसका जीवन है। We worship the Lord Jesus हम Christ. ऐसे ही परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते Now I हैं। want to quickly tell you why the resurrection of Christ is so significant. मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि क्यों यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए जबरदस्त है। Number one, his resurrection proves that his sacrifice was acceptable to God.
और पहली बात यह है कि जो उसकी कुर्बानी थी वो परमेश्वर की नजर में स्वीकार की गई। You know, in the Old Testament, when the priest went into the Holy of Holies with the sacrifice, the blood of the sacrifice, आप जानते हैं कि पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं तो जब किसी का पाप क्षमा किया जाता था तो जो प्रीस्ट को किसी का खून लेकर वेदी के पास जाया करता था। he went in with a rope tied around his ankle or his waist, और उसकी कमर के ऊपर एक रस्सी को बांधा जाता था because he didn't know if God would accept his sacrifice. क्योंकि वो जानता नहीं था कि क्या वाकई परमेश्वर उसकी कुर्बानी को कबूल करेंगे या नहीं। If his sacrifice was accepted, he would come out alive. अगर उसकी कुर्बानी को स्वीकार किया गया तो वो वापस आ जाएगा, If it was not accepted, he would drop dead right there. और अगर स्वीकार नहीं किया गया तो वो वहीं मर जाएगा And they would pull him out with a और rope. वो उस रस्सी से उसको खींच लेंगे। But you know Jesus? लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह, Hebrews tells us he took his own blood and he went into the Holy of Holies in the heavenly places. और इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह ने हम सब के पापों को लिया और वो पवित्र परमेश्वर के पास उस लहू को लेकर चला गया And he came out alive, और वो जिंदा वापस आ गया। which means that his sacrifice, God said, good job, done. इसका मतलब ये कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा तू वाकई पवित्र है, जबरदस्त काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। I accept it for the sin of the world. मैं स्वीकार करता हूँ इस संसार के सारे पापों को। Jesus' resurrection shows us that his sacrifice was acceptable to God for us. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये बताता है कि उसने हमारे पापों को लेकर परमेश्वर पे गया और वो पवित्र होने के नाते परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया और वो जिंदा होकर वापस आ गया। आमीन। The second thing that it shows to us the significance of the resurrection is that it proves his sinless life. और दूसरी बात ये बताता है कि उसने ये साबित कर दिया कि वो निष्कलंक या निष्पाप जिया। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत। Did Jesus have any sin in him? यीशु मसीह के पाप में कोई सिन है, पाप था? No. We saw it on Good Friday. There was no sin in him. हमने शुक्रवार को देखा गुड फ्राइडे वाले कि वो बिल्कुल There was कोई पाप नहीं था। There was no capacity in the Lord Jesus Christ. There was nothing in him that even went in the direction of sin. और उसके अंदर ऐसी कोई क्षमता थी नहीं कि वो पाप की तरफ कभी भी आगे बढ़े। He was the sinless Lamb of God. वो मेमना था, ऐसा पवित्र पाप मेमना परमेश्वर। And that's why death could not keep a hold on him. इसलिए मौत भी उसको रोक ना पाई। Because he had nothing to pay for. और उसके पास कुछ था ही नहीं कि वो परमेश्वर को पे करे। The reason why he died was because of our sin. Do you get that? क्यों मरा वो आपके और मेरे पापों के लिए। इस बात को आप समझते हैं। Not for his sin, for our sin. अपने पापों के लिए नहीं, लेकिन आपके और हमारे पापों के लिए। And when he had offered a sacrifice for our sin, he rose again because death has no power over him. जब परमेश्वर के पास वो हमारे और आपके पापों को लेके गया तो उसकी सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था। His resurrection proves his sinful life, sinless life. उसका पुनरुत्थान ये साबित करता है कि उसका जीवन जो जिया बिना पाप के The जिया। third thing I want you to notice is that his resurrection proves his word. और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि उसका पुनरुत्थान ये साबित करता है कि उसके शब्द कितने सच्चे थे। Before Jesus was crucified, many times he told his disciples, I'm going to die and I'm going to rise again. पुनरुत्थान से पहले उसने अपने चेलों को कई बारी बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दोबारा जी उठूंगा। So many times he told them. कई बारी उसने इस बात को बोला। They didn't get it. वो समझ नहीं पाए इस बात को। They didn't believe it. उसने विश्वास भी नहीं किया इस बात They को। laughed at him. और वो कई बारी उसके ऊपर हंसे भी। They mocked him. और उसने उनका मजाक भी उड़ाया। And they left him. और उन्होंने कई बारी उसको छोड़ भी दिया। But what did Jesus do? He rose again. लेकिन उसने यीशु मसीह ने क्या किया कि वो मुर्दों में से जी उठा। And if in the most unthinkable, unimaginable way, Jesus can fulfill his word, और एक सोचने वाली बात ये है कि यीशु मसीह ने अपने शब्द जो बोले थे उसको पूरा किया। how much more is he going to fulfill everything else in his word? और आप क्या सोच सकते हैं कि दूसरी जो बातें बोली थी कितना उसने इन बातों को साबित किया जो उन्होंने बोला था। Do you doubt God's word? क्या आप शक करते हैं जो उसने बोला? Do you struggle to believe some of the things that he says to you? क्या आप संघर्ष करते हैं जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं क्या ये सही है या गलत है? I think you do. क्या आप करते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा करते हैं। Do you worry? क्या आप चिंता करते हैं? What does Jesus say? Do not worry. यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करो। So you're doubting God's word. क्या आप परमेश्वर के शब्दों पर शक कर रहे हैं? You're not taking his word seriously. हम सीरियसली इसके शब्दों को नहीं ले रहे हैं।
When Jesus fulfilled his word about his resurrection, जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के शब्द को पूरा करता है, how easily is he going to fulfill everything else that he has said to और us? कितनी आसानी से वो शब्द को जो उसने वचन में बोला है पूरा करेगा। Now, the fourth thing that I want you to notice is that his resurrection makes our hope sure. और चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो उसका पुनरुत्थान है, जो हमारी आशा है, वो पूरी करता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 19 says, if in Christ we have hope in this life only, पहला कुरिन्थियों 15:19 में बोला है कि if in Christ we have hope in this life only, अगर इस जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, सिर्फ इस जीवन में, सिर्फ इस जीवन में, we are of all people most to be pitied. और हम सब ऐसा होने के नकारते हैं, ऐसा करते हैं। If only in this life, if Jesus didn't rise from the dead and our hope is in him, then there's nothing to it. How is he different from anybody else? अगर यीशु मसीह जीवन पे आए, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। But our hope is sure because Jesus lives. हमारी आशा ये है कि केवल यीशु मसीह पृथ्वी पे नहीं आए, लेकिन आशा ये है कि यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है। You like that song that we sing, because he lives, I can face tomorrow. और क्या आप इस वाणी को पसंद करते हैं कि क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए मैं कल को चुनौती भरा जो कल है उसको देख सकता हूँ। Because he lives, all fear is gone. क्योंकि जब हम उसे विश्वास करते हैं, सारे डर, सारे खौफ हमारे जीवन से चले जाते हैं। Because I know he holds the future. और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भविष्य को पकड़े हुए है। My life is worth living because he lives. मेरा जीवन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उसमें जीता हूँ। Now the fifth thing I want you to notice is that his resurrection gives us new life. और मैं पांचवी चीज बताना चाहूंगा कि उसका जो पुनरुत्थान है मुझे एक नई जीवन देता है। Romans chapter 6 verse 4, it says, we were buried therefore with him by baptism into death. और रोमियो 6:4 में लिखा है कि बपतिस्मे के द्वारा हम उसमें मरे गए और नया तरीके से जिलाए गए। That means when Jesus died on the cross and we believed in him, we died with him on the cross. जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, अगर हम क्रूस के ऊपर यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो हम भी क्रूस पर अपने पापों को लेकर चढ़ाए जाते हैं। And in the same way that Jesus was raised from the dead, और उसी प्रकार से जब यीशु मसीह मुर्दों में जिलाए गए, we will also be raised to the newness of life. और हम भी जब यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो एक नया जीवन उसके अंदर पाते हैं। When Jesus paid for our sin, जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने कीमत को चुकाया, God was able to come and dwell in us by his spirit. और उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारी आत्मा में विश्वास किया And he और gave, वास किया, and he created in there, he birthed in there new life. और हमारे अंदर ऐसा करने से उसने एक नए जीवन को पैदा किया। There's a new person of life inside you. विश्वास करने से हमारे अंदर यीशु मसीह के द्वारा एक नया जीवन। You know, 1 Corinthians, it says, outwardly, we're wasting away. और पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि भारी रूप से हम सब कुछ खराब कर रहे हैं, सब कुछ खराब है। The hair is falling off. बाल गिर जाते हैं। Don't laugh. Yours will also fall. हंसे ना, क्योंकि आपके भी गिर सकते हैं। Your goatees are going to get white. और दाढ़ी भी सफेद हो जाती है। You're going to get wrinkles over here. आँख के सामने झुर्रियाँ आ जाती हैं। Outwardly, we're wasting away. और धीरे-धीरे भारी रूप से हम लोग खत्म होते जाते हैं। But if you're in Christ, लेकिन अगर हम मसीह में हैं, he says, inwardly we are being renewed day after day after day. और बताते हैं अगर हम मसीह में हैं, रोज 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 उसमें नए होते Because जाते that हैं। new person of life inside us is growing. क्योंकि यीशु मसीह में अंदरूनी जीवन बढ़ रहा है। And one day, when Christ returns, that person with your new resurrected body will be glorified. और जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, तो हमारी अंदरूनी बॉडी है वो उठ खड़ी होगी और परमेश्वर के एक साथ मिलकर महिमा करेगी। So if you are in Christ by faith, अगर आप विश्वास में यीशु मसीह में हैं, you're given a new life. आप एक नया जीवन दिया गया है। Suddenly things look different. अचानक से चीजें अलग से दिखाई देंगी। You know what I'm talking about? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? You start loving different things. आप अलग से अलग-अलग चीजों को प्यार करने लगेंगे। And you start hating other things. और कई चीजों को आप नफरत भी करने लगेंगे। You start hating
things that displease God. You just don't like them और anymore. कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप भी उसको नापसंद करने And you लगेंगे। start loving the things that God loves. और उन चीजों को पसंद करने लगेंगे जिसको परमेश्वर ज्यादा पसंद करते हैं। That's new life. ये है नया जीवन। That's new life coming out from inside of you. और यही नया जीवन है जो अंदर से बाहर निकल के His आता है। resurrection gives us new life. और उसका पुनरुत्थान एक नया जीवन हमको Number देता है। 6, His resurrection guarantees our resurrection. और छठा ये है कि उसका पुनरुत्थान हमारे लिए भी पुनरुत्थान की गारंटी देता है। Romans 6:5. रोमियो 6:5 बोलता है, For if we have been united with Him in a death like His, और उसकी मौत के तरह भी हम उसकी मौत में भागीदार हों, we shall certainly be united in a resurrection like His. तो उसके पुनरुत्थान में भी जरूर हम सहभागी होंगे। That's what it says. यही पे बाइबल बोलती है। And the way that Christ was raised with a glorified body, जिस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए नए शरीर के द्वारा पुनरुत्थान हुआ, you and I will be raised, हम दोनों भी एक दिन पुनरुत्थान होंगे। never to die again. कभी मरेंगे नहीं हम लोग। Isn't that amazing? क्या जबरदस्त बात है। You'll be able to run as fast as you want to run. और जिस प्रकार से भी आप तेज भागना चाहते हैं, आप भाग सकते हैं। You'll be able to enjoy such freedom in your person when sin doesn't hold you anymore. जब हमें पाप अपने कब्जे में पकड़ के नहीं रखेगा, तब हम उस आजादी को जो परमेश्वर ने हमें दिया महसूस कर There won't पाएंगे। be suffering. हम लोग परेशान नहीं होंगे There won't be pain. और दर्द नहीं होगा। He will wipe away every tear from our और eyes. वो सारे आंसुओं को हमारी आंखों से पोंछ डालेगा। And we will be with Him जब हम उसके साथ होंगे forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। As Jesus lives forever, जिस प्रकार से यीशु हमेशा के लिए जिंदा है, so we will live forever. उसी प्रकार से हम भी हमेशा जिंदा रहेंगे। Now, I want to take you to one last verse and we're done, okay? और Few minutes more. आखिरी में शब्द दूंगा, उसके बाद हम लोग इस बात खत्म करेंगे। Colossians chapter 3 verses 1 to 4. कुलुस्सियों की किताब उसका तीसरा अध्याय 1 से 4 इस प्रकार से। I've told you 6 things about Christ's resurrection. मैंने 6 बातें आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताई। I want to tell you what to do about that. और मैं इस बताऊं किस प्रकार से मैंने इस बात को उल्लेखित किया है। You want to read? Colossians 3 1 to 4. यहाँ पे लिखा है, अतः अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी अपने उसकी महिमा के साथ उसके साथ प्रकट होंगे। Very good. Let me read it to you in English, okay? If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Okay, let's do this together. It's on the screen. We like to read together, okay? So we'll read together, everybody together. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. What a wonderful verse. क्या जबरदस्त शब्द है। And what Paul is saying to us, he's saying, if you have been raised with Christ. और पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, यदि हम यीशु मसीह में जिलाए जाते हैं। Are you raised with Christ? क्या आप यीशु मसीह में जिलाए गए हैं? Not sure. क्या यकीन से नहीं कह सकते? Are you raised with Christ? क्या आप यीशु मसीह में जिलाए गए हैं? Have you put your faith in the Lord Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह पर अपना विश्वास लगा सकते हैं? Has He saved you? क्या आपको उसने बचाया है? Then you're raised with Christ. तब आप यीशु मसीह में जिलाए You can गए। smile again. आप मुस्कुरा सकते हैं ब्रदर सिस्टर। And Paul is saying, if you are raised with Christ, पौलुस यहाँ बोल रहा है, अगर आप यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, which you are, जो आप जिलाए गए हैं, then seek what is above. और उन चीजों की खोज में रहो जो स्वर्गीय हैं। Set your minds on things above. उन अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को उन चीजों पर लगाओ जो स्वर्गीय हैं। What's above? क्या है ऊपर? Not that. ये छत पर नहीं। Christ is seated at the right hand of God. यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान He है। was raised again. वो दोबारा जलाया गया। He ascended to the Father's side. वो भेजा गया परमेश्वर के पास। And the right hand signifies rule and power and authority. और दाहिनी हाथ का मतलब है कि रूल करना,
अधिकार में जीना। And Jesus is at the right hand of God with rule and with power and authority. और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है पूरे अधिकार। You happy about that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? That's amazing, isn't it? He's there. And Paul is saying, look at Jesus. और पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह की तरफ देखो। Don't look at the things of this world. और इन सांसारिक चीजों की तरफ मत देखो। Don't worry about the things of this किसी भी world. चीज की सांसारिक चीजों की चिंता मत करो। Don't worry about the things that oppose you and trouble you and bother you. ऐसी चीज की चिंता मत करो जो आपको तंग करती है, परेशान करती है। Don't worry about the things that the world worries about. और जो संसार जिन चीजों की चिंता करता है, आप उसकी चिंता मत करो। Your money and your career आपका पैसा, आपका भविष्य, and your property आपका जमीन जायदाद, and your reputation आपकी ख्याति, and your position. आपकी पोजीशन। Don't worry about those आप things. उस बात की चिंता मत The करो। world worries about those संसार things. उन सब की चिंता करता है। You set your mind on Christ. वचन बोलता है कि आपका मस्तिष्क परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ You लगाओ। look at Christ alone. यीशु मसीह की तरफ, केवल उसकी तरफ देखो। You worship Him alone. उसकी आराधना और स्तुति करो केवल। You ought to be concerned about the things that Jesus is concerned about. आपको इस बारे में ख्याल होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह आपकी चिंता करता है, उसी प्रकार से आपका ध्यान भी यीशु मसीह पे लगा होना चाहिए। Your heart should break for the things that break the heart of the Lord Jesus Christ. उन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए जो बातें परमेश्वर को पसंद है और जिनके द्वारा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। Your purposes should be His purposes. आपका उस उद्देश्य उसका उद्देश्य होना Your चाहिए। ambitions should be His. आपकी चाह वैसी चाह होनी चाहिए परमेश्वर की आपके लिए चाह है। And then if you've got anything over here, और आप इसके चलते आप कुछ यहाँ पर पाते like money, जैसे पैसा, like a house, घर, like cars, कार, like a job, नौकरी, if you've got any of those things also, you use it for Him. और ऐसी चीजें भी अगर आपको मिलती है, उन सब चीजों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। That's how you set your mind on things इसी above. प्रकार से इन सब चीजों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को यीशु मसीह पर And I लगाओ। like what Paul says at the end. He says, "For you have died and your life is hidden with Christ in God." और मैं इस बात को जबरदस्त पसंद करता हूँ जो पौलुस बोलता है कि आप मर गए लेकिन आपका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। Now what he's saying is that your life is safe in God. और ये क्या बताना चाह रहा है कि हमारा जीवन, आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है। You'll never lose your life if it's with Jesus. अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन को कभी भी ना You खोएंगे। can give it away. हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। You can serve and give it away in this earth हम लोग जो मर्जी करें, लेकिन परमेश्वर के हाथ में हम हैं, because it is safe with Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित हैं। And he says, when Christ returns, यहाँ बोलता है कि यीशु मसीह दोबारा अपनी महिमा में आएंगे then you also will appear with Him in glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए हम भी जिलाए जाएंगे और खड़े किए जाएंगे। You'll be glorified with the resurrected Lord Jesus. और उस पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का है उसके साथ हम भी पुनरुत्थान किए जाएंगे और यीशु मसीह की महिमा करेंगे मिलकर। That's the best way to live life. ये एक जबरदस्त तरीका है उसके इंतजार में, यीशु मसीह के इंतजार में हमारा जीना। I've enjoyed my life with Christ. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ यीशु मसीह के साथ। I wouldn't want to live it any other way. मैं किसी भी के कारण से यीशु मसीह वाला जीवन नहीं छोड़ सकता हूँ। Yes, there are challenges. हाँ, चुनौतियाँ हैं। I struggle with things that everybody struggles with. जिस प्रकार से हम सब स्ट्रगल करते हैं, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ। But Christ is my Lord and He is my Master. लेकिन यीशु मसीह मेरा अधिकार है, मेरा परमेश्वर है। And He washes me and He cleanses me और वो मुझे साफ करता है, मुझे धो डालता है and He forgives me. और मुझे माफ करता है वो। And He sets my life on the greatest journey I could possibly think or imagine to और have. ऐसी यात्रा को जो मेरे जीवन की है, मैं कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कि संसार में मुझे मिलेगी, लेकिन यीशु के पीछे जाके मुझे मिलती है। I serve the King. मैं ऐसे राजाओं के राजा की सेवा करता हूँ। Do you serve the King? क्या आप राजाओं के राजा की सेवा What could करते be हैं? better than serving the King of Kings? क्या जबरदस्त होगा राजाओं के राजा की सेवा करना? Nothing. कुछ ऐसा नहीं है उसके अलावा। So I want to challenge you this morning. If you have never put your faith in Jesus, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आज से पहले अगर आपने अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं रखा है, if you've never done that transaction where you've given your whole life to Him and you've taken His life as yours, अगर कभी ऐसा तजुर्बा आपके पास नहीं आया है कि अपने जीवन को आप यीशु मसीह को दे रहे हैं और उसका जीवन आप जी रहे हैं, then it's very simple. तो ये
बहुत आसान है ऐसा करना। You got to pray आप प्रार्थना करें, and you got to ask the Lord Jesus आप यीशु मसीह से प्रार्थनाओं में मांगे, to be the Lord and the Savior of your life. परमेश्वर मेरे जीवन का मैं अंगीकार करता हूँ और मेरे जीवन का आप एक अधिकारी बने। And you'll have an opportunity at the end of the service to come and speak to us. If there's something that God is saying to you this morning, then come and talk to us. Come and talk to myself, talk to Brother John. अगर आज आप पहली बार आए हैं, अगर आज मेरे वचन जो हम लोगों ने वचन दिया उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें करी हैं, इस सर्विस के बाद आप पास्टर चंदन से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और पीछे जो भाई हैं उनसे भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। But if you're a Christian, अगर आप मसीह हैं but you've been living your own life, और मसीह हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं संसार में, you've not been looking at Christ, अगर आप यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहे हैं, it's not too late to start. ये देर नहीं हुई अभी नया It's not too late to begin to look to Jesus. अभी भी देर नहीं हुई है कि यीशु मसीह की तरफ देखें और एक नया जीवन शुरू Let me करें। read a verse from the Apostle Paul, Galatians 2:20, and we will pray and close. गलतियों के नाम पे 2:20 हम लोग पढ़ेंगे और उसको खत्म करेंगे। Do you want to read in Hindi, or shall we all read it together? Yeah, let's do this. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Let's pray together.